Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the second part of the solutions to NCERT questions of the fifth chapter of class 10th chemistry, periodic classification of and periodicity in properties. In this video, we will discuss solutions to exercise questions. So let's begin. The first question is, which of the following statements is not a correct statement about the trends when going from left to right across the periods in a periodic table? Periodic table में लेफ्ट टू राइट जाते हुए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होता है? द एलिमेंट्स become less metallic in nature, the number of valence electrons increases, the atoms lose their electrons more easily, and the oxides become more acidic. So इनमें से ऑप्शन नंबर सी, the atoms lose their electrons more easily, ये गलत है, because on moving left to right in a periodic table the non-metallic character increases, hence the tendency to lose electron decreases, बल्कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है. सेकेंड क्वेश्चन, एलिमेंट X forms a chloride with formula XCl2 which is a solid with a high melting point. X would most likely be in the same group of the periodic table as सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन. इनमें से कौन से ग्रुप में हो सकता है? सॉलिड है और XCl2 फॉर्मूले से एक क्लोराइड बनाता है. इट इज सपोज टू बी इन, सो इट्स मोर लाइकली टू बी इन द टेबल विद Mg, मैग्नीशियम जिस पीरियड में है, जिस ग्रुप में है, उसी ग्रुप में X के होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड इज सेम, XCl2 और MgCl2. नेक्स्ट, विच एलिमेंट हैज़ टू शेल्स both of which are completely filled with electrons? कौन सा एलिमेंट के दो शेल होते हैं जिसमें दोनों शेल में इलेक्ट्रॉन completely filled होते हैं? So neon has two shells with both of which are completely filled with electrons, 2 in the K shell and 8 in the L shell. 2,8 configuration होता है. Next, electronic configuration of 2,8,2. कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 होता है? 2,8,2 का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 12 और 12 electrons, atomic number 12, that is for magnesium. Next, a total of 3 shells with 4 electrons in its valence shell. Total number of shells 3 और valence shell में electrons होंगे 4. So 3 shells with 4 electrons in last shell, it will 2,8,4, that is total number of electrons. 14, which makes the element to be silicon. 2,8,4, 14 electrons, that is atomic number 14, which is silicon. The next is a total number of 2 shells with 3 electrons in its valence shell. Valence shell में 3 इलेक्ट्रॉन और टोटल 2 शेल, तो पहले में 2, दूसरे में 3, टोटल 5, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन atomic number 5, which is for boron. Next, twice as many electrons in its second shell as in its first shell. फर्स्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे डबल इन द सेकेंड शेल. सो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4, टोटल 6, दैट इज कार्बन. नेक्स्ट, what property do all elements in the same column of periodic table as boron have in common? कौन सी प्रॉपर्टी सेम कॉलम इन द periodic table as boron have? बोरॉन के साथ सेम कॉलम में आने वाले सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कौन सी है जो कॉमन है आपस में? ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम एज बोरॉन हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, हेंस दे आर द वैलेंसी इक्वल टू 3. बोरॉन के साथ जितने भी एलिमेंट सेम कॉलम में आते हैं सबकी जो वैलेंसी है वो 3 होती है. नेक्स्ट, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ periodic table एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन? फ्लोरीन के साथ सेम कॉलम में आने वाले एलिमेंट्स में क्या सिमिलरिटी होती है? तो इन सब की वैलेंसी 1 होती है और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सब में होता है 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7. व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? 2,8,7 अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? सो 2 + 8 + 7 वी हैव टोटल 17. व्हाट इज़ द atomic number of the element? atomic number पूछ रहा है, 17 है. So next, to which of the following elements would it be chemically similar? इनमें से कौन से एलिमेंट के साथ केमिकली सिमिलर होगा? नाइट्रोजन, फ्लोरीन,
फॉस्फोरस और आर्गन। तो इनमें से किसके साथ सिमिलर होगा? बाय द फैक्ट दैट periodicity is by after every 8 elements it is periodic. So this is atomic number 17 with minus 17 minus 8 is 9. So it will be similar in properties with fluorine, which is atomic number 9. Both of them have 7 electrons in the valence shell. Next, the position of 3 elements A, B, C in the periodic table is shown below. State whether A is a metal or non-metal. A is a metal or it is in a group 17 and all the group 17 elements are non-metals. So A is a non-metal. Then state whether C is more reactive or less reactive than A. C A से ज़्यादा reactive है या फिर कम reactive है. तो हम यहाँ पे नीचे आ रहे हैं. As C is less reactive than A, as reactivity decreases in a group, as in halogens. Halogen में नीचे आते हैं तो reactivity घटती है, इसलिए C is less reactive. And next part, will C be larger or smaller in size than B? C जो है वो B से बड़ा होगा या छोटा होगा साइज में. So C will be smaller in size than B. As moving across the period, the nuclear charge increases and therefore the electrons come closer. Nuclear charge बढ़ जाता है जब across the period आते हैं, तो जब हम C की तरफ चलेंगे तो चार्ज बढ़ेगा, इसलिए साइज जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए C का साइज B से कम होता है. Which type of ion, cation or anion will be formed by the element A? एलिमेंट A cation या anion में से कौन सा फॉर्म ऑफ आयन बनाएगा? अब A है, A विल फॉर्म एनायन क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा टू कंप्लीट द ऑक्टेट. नेक्स्ट, नाइट्रोजन atomic number 7 and phosphorus atomic number 15 belong to group 15 of the periodic table. Write the electronic configuration of these two elements. Which of these will be more electronegative and why? तो नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? फॉर नाइट्रोजन इट विल बी 2,5 इन शेल KLN एंड फॉस्फोरस विल बी 2,8,5 इन शेल KLNM. अब इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है और क्यों? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन फॉस्फोरस. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, देयरफॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. शेल बढ़ जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, जो आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं. एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस. दिस कॉजेज द डिक्रीज इन द टेंडेंसी ऑफ द अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, हेंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. जब वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स कम लग रहा होगा, इसलिए नए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगी. तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी घट जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट जाएगी. नेक्स्ट, what is the electronic configuration of an atom relate to its position in its modern periodic table? Electronic configuration or position of the atom in a periodic table, how do the two things relate? So the modern periodic table, atoms with similar electronic configuration are placed in the same column. In a group, the number of valence electrons remains same. Elements across the period show an increase in the number of valence electrons. मतलब नंबर ऑफ एटम्स से ऐसे मैटर करता है कि द सेम कॉलम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, नंबर ऑफ एटम्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा वो सारे एलिमेंट एक ही कॉलम में आएंगे. इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम. एक ही ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होंगे, यानी कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के सारे ही एलिमेंट्स के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. लाइकवाइज, एंड एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड शो एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और अक्रॉस द पीरियड जाएंगे अगर तो लगातार एक ही करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल बढ़ेगा बाय 1 फॉर एवरी नेक्स्ट पीरियड. नेक्स्ट, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैल्शियम विद एटॉमिक नंबर 20 is surrounded by elements with atomic number 12, 19, 21 and 38. Which of these have physical and chemical properties resembling calcium? इनमें से कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ केमिकल या फिजिकल कैल्शियम से मिलती जुलती हैं? एटॉमिक नंबर 12, 19, 21 and 38. So element with atomic number 12 has same elemental, chemical or physical properties with calcium. Chemical properties with calcium. This is because both of them have the number of valence electron equal to 2. Magnesium atomic number 12 and calcium atomic number 20 both have number of electrons in the valence shell equal to 2. तो सेम वैलेंसी होती है, इसलिए दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो रिजेंबल करती हैं. नेक्स्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, उसके बारे में कंपैरिजन करना है.
तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। मेंडलीव के टेबल में एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए थे एलिमेंट्स। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। मेंडलीव्स के टेबल में there are total of 7 groups, columns and 6 periods or rows. 7 groups and 6 periods are there in Mendeleev's column, while there are 18 groups and 7 periods or rows in the modern periodic table. Elements having similar properties were placed directly under one another. जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी उनको एक नीचे रखा गया था in the Mendeleev's table, and in the modern table the elements have the same valence shell are present in the same period, while elements having the same number of valence electron are present in the same group. नंबर ऑफ वैलेंस शेल जिसमें सेम है उसमें पीरियड सेम होता है, और जहाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है वहाँ पे ग्रुप सेम होता है। तो प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट मैच कर जाती हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टीज, इट इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। The position of hydrogen could not be explained in the Mendeleev's table, and the position of hydrogen is placed above the alkali metals in the modern periodic table. No distinguishing position for metals and non-metals. मेटल और नॉन मेटल के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी डिस्टिंग्विश करते हुए, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट metals are present at the left hand side of the periodic table, whereas non-metals are present on the right hand side. सारे metals जो हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं in the modern table, and all the non-metals are on the right side. तो दोस्तों यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में और के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।